Honorable Speaker said, I now present my proposals on direct taxes. New Income Tax Act. In July 2024, I announced a comprehensive review of the Income Tax Act 1961. This was completed in record time, and the Income Tax Act 2025 will come into effect from 1st April 2026. The simplified income tax rules and forms will be notified shortly, giving adequate time to taxpayers to acquaint themselves with its requirements. The forms have been redesigned such that ordinary citizens can comply without difficulty. Ease of reading. I propose that any interest awarded by the Motor Accident Claims Tribunal to a natural person will be exempt from income tax, and any TDS on this account will be done away with. I propose to reduce TCS rate on the sale of overseas tour program package from the current 5% and 20% to 2% without any stipulation of amount. I propose to reduce TCS rate for pursuing education and for medical purposes under the Liberalized Remittance Scheme, popularly known as LRS, from 5% to 2%. Supply of manpower services is proposed to be specifically brought within the ambit of payment to contractors for the purpose of TDS to avoid ambiguity. Thus, TDS on these services will be at the rate of either 1% or 2% only. I propose a scheme for small taxpayers wherein a rule-based automated process will enable obtaining a lower or nil deduction certificate instead of filing an application with the assessing officer. For the ease of taxpayer holding securities in multiple companies, I propose to enable depositories to accept Form 15G or Form 15H from the investor and provide it directly to various relevant companies. I propose to extend time available for revising returns from 31st December to up to 31st March with a payment of a nominal fee. I also propose to stagger the timeline for filing of tax returns. Individuals with ITR 1 and ITR 2 returns will continue to file till 31st July, and non-audit business cases or trusts are proposed to be allowed time till 31st August. TDS on sale of immovable property by a non-resident is proposed to be deducted and deposited through resident buyers and his or her PAN-based challan instead of requiring a PAN, which is a temporary accounting number. To address practical issues of small taxpayers like students, young professionals, tech employees, relocated NRIs, and such others, I propose to introduce a one-time 6-month foreign asset disclosure scheme for these taxpayers to disclose income or assets below a certain size. This scheme would be applicable for two categories of their taxpayers, namely A, who did not disclose their overseas income or assets, acquired. For category A, the limit of undisclosed income or asset is proposed to be up to 1 crore rupees. They need to pay 30% of fair market value of asset or 30% of undisclosed income as tax and 30% as additional income tax in lieu of penalty, and would thereby get immunity from prosecution. For here, immunity from both penalty and prosecution will be available with a payment of fee of 1 lakh rupees. Rationalizing penalty and prosecution.
Multiplicity of proceedings are hindrance to the ease of doing business. I propose to integrate assessment and penalty proceedings by way of a common order for both. There will be no interest liability on the taxpayer on the penalty amount for the period of appeal before the first appellate authority, irrespective of the outcome of appeal process. Further, quantum of prepayment is being reduced from 20% to 10% and will continue to be calculated only on core tax demand. As an additional measure for reducing litigation, I propose to allow taxpayers to update their returns even after reassessment proceedings have been initiated, and an additional 10% tax rate over and above the rate applicable for the relevant year. The assessing officer will then use only this updated return in his proceedings. There is already a framework for immunity from penalty and prosecution in the cases of underreporting. I propose to apply this framework for immunity to misreporting too. However, in such a case, the taxpayer will need to pay 100% of the tax amount as an additional income tax over and above the tax and interest due. Penalties for certain technical defaults, such as failure to get accounts audited, non-furnishing of transfer pricing audit report, and default in furnishing statement for financial transactions are proposed to be converted into fee. I propose to rationalize prosecution framework under Income Tax Act while maintaining a careful balance for deterrence in some serious offence. Non-production of books of account and documents and requirement of TDS payment where payment is made in kind are being decriminalized. Further, minor offences will attract fine only. The remaining prosecutions will be graded commensurate with the quantum of offence. They will entail only simple imprisonment with maximum imprisonment reduced to 2 years and power to courts to convert even those into fines. There is no penalty. There is no penalty presently for non-disclosure of non-immovable foreign assets with aggregate value less than 20 lakh rupees. I propose to also provide them with immunity from prosecution with retrospective effect from 1/10/2024. Cooperatives. Deduction is already allowed to a primary cooperative society engaged in supplying milk, oilseeds, fruits or vegetables raised or grown by its members. I propose to extend this deduction to also include supply of cattle feed and cotton seed produced by its members. I propose to allow inter-cooperative society dividend income as deduction under the new tax regime to the extent it is further distributed to its members. I further propose to allow exemption for a period of 3 years to dividend income received by a notified national cooperative federation on their investments made in companies up to 31/1/2026. This exemption would be allowed only for dividends further distributed to its member cooperatives. Supporting IT sector as India's growth engine. India is a global leader in software development services, IT-enabled services, knowledge process outsourcing services, and contract R&D services relating to software development. These businesses and their segments are quite interconnected with each other. All these services are proposed to be clubbed under a single category of information technology services with a common safe harbor margin of 15.5% applicable to all. The threshold for availing safe harbor for IT services is being enhanced substantially from 300 crore rupees
to 2,000 crore rupees. Safe harbor for IT services shall be approved by an automated rule-driven process without any need for tax officer to examine and accept the application. Once applied by an IT services company, the same safe harbor can be continued for a period of 5 years at a stretch at its choice. For IT services companies who want to conclude advanced pricing agreement APA, I propose to fast track unilateral APA process for IT services and endeavor to conclude it within a period of 2 years. The period of 2 years can be extended by a further period of 6 months on taxpayers' request. I propose to extend the facility of modified returns available to the entity entering APA to its associated entities also. Attracting global business and investment. Recognizing the need to enable critical infrastructure and boost investment in data centers, I propose to provide tax holiday till 2047 to any foreign company that provides cloud services to customers globally by using data center services from India. It will, however, need to provide services to Indian customers through an Indian reseller entity. I also propose to provide a safe harbor of 15% on cost in case the company providing data center services from India is a related entity. To harness the efficiency of just-in-time logistics for electronic manufacturing, I propose to provide safe harbor to non-residents for component warehousing in a bonded warehouse at a profit margin of 2% of the invoice value. The resultant tax of about 0.7% will be much lower than in competing jurisdictions. To provide fillip to toll manufacturing in India, I propose to provide exemption from income tax for 5 years to any non-resident who provides capital goods, equipment or tooling to any toll manufacturer in a bonded zone. To encourage vast pool of global talent to work in India for a longer period of time, I propose to provide exemption to global, non-India sourced income of a non-resident expert for a stay period of 5 years under notified schemes. I propose to provide exemption from minimum alternate tax, the MAT, to all non-residents who pay tax on presumptive basis. Tax administration. I propose to constitute a joint committee of Ministry of Corporate Affairs and Central Board of Direct Taxes for incorporating the requirements of income computation and disclosure standards, the ICDS, in the Indian Accounting Standards in the AS itself. Separate accounting requirement based on ICDS will be done away with from the tax year 27-28. To support Prime Minister Modi's vision of homegrown accounting and advisory firms to become global leaders, I propose to rationalize the definition of accountant for the purposes of safe harbor rules. Other tax proposals. Change in taxation of buyback was brought in to address the improper use of buyback route by promoters. In the interest of minority shareholders, I propose to tax buyback for all types of shareholders as capital gains. However, to disincentivize misuse of tax arbitrage, promoters will pay an additional buyback tax. This will make effective tax 22% for corporate promoters. For non-corporate promoters, the effective tax will be 30%. TCS rate for sellers of specific goods, namely alcoholic liquor, scrap
and minerals will be rationalized to 2%, and that on tender leaves will be reduced from 5% to 2%. I propose to raise the STT on futures to 0.05% from the present 0.02%. STT on options premium and exercise of options are both proposed to be raised to 0.15% from the present rate of 0.1% and 0.125% respectively. We reformed the taxation landscape for corporates in 2019 by providing them a simplified regime with lower tax rate so that they could productively focus on business rather than on claim of deductions and exemptions. To encourage companies to shift to the new regime, set off of brought forward MAT credit, minimum ordinary tax credit, is proposed to be allowed to companies only in the new regime. Set off using available MAT credit is proposed to be allowed to an extent of 1/4 of the tax liability in the new regime. MAT is proposed to be made final tax. So there will be no further credit accumulation from 1st April 2026. In line with this change, the rate of final tax is being reduced to 14% from the current MAT rate of 15%. The brought forward MAT credit of taxpayers accumulated till 30th March 2026 will continue to be available to them for set off as above. Indirect taxes. I shall now take up proposals related to indirect taxes. My proposals for customs and central excise aim to further simplify the tariff structure, support domestic manufacturing, promote export competitiveness, and correct inversion in duty. To continue weeding out long continuing customs duty exemptions, I propose to remove certain exemptions on items which are being manufactured in India or where the imports are negligible. Similarly, to further simplify the process of ascertaining the rate of duty applicable on a particular item, I propose to incorporate certain effective rates in various customs notifications to the tariff schedule itself. I shall now take Just a moment, sir. मेरे पास तो जिनके साथ में फॉलो करने के लिए कर दिया उसको सिंपलीफाइड चीज़ों का सब जगह को एंजॉय करना स्टार्ट कर दिए इन्होंने ऐसे कोई चेंज नहीं किया मेजर चेंज नहीं करा इन्होंने भी कोई बस माइनर में ही है करेक्शन करें और भाई इंडिविजुअल को तो कोई फर्क पड़ना नहीं है रिटर्न दो कर दी और सीए के लिए काम पूरा है नहीं ठीक है सर और सितंबर है अक्टूबर है 4 महीने तो कम से कम ठीक है मतलब ये ठीक भी है मैंने कहा सब लोग इजी बाइफिकेशन हो जाएगा तो अपनी एक भी चैप्टर में क्यों ऑडिट में 2 महीने मिलते थे फिर निकलता था 2 महीने अब एक ही महीने मिलेगा अपने garments, leather or synthetic footwear and other leather products. Energy transition and security. I propose to extend the basic customs duty exemption given to capital goods used for manufacturing lithium-ion cells for batteries to those used for manufacturing lithium-ion cells for battery energy storage systems also. I propose to exempt basic customs duty on import of sodium antimonate for use in manufacture of solar glass. Nuclear power. I propose to extend the existing basic customs duty exemption on imports of goods required for nuclear power projects till the year 2035 and expand it for all nuclear plants irrespective of their capacity. Critical minerals.
it is proposed to provide basic customs duty exemption to the import of capital goods required for the processing of critical minerals in India. Biogas blended CNG. I propose to exclude the entire value of biogas while calculating the central excise duty payable on biogas blended CNG. Civil and defense aviation. I propose to exempt basic customs duty on components and parts required for the manufacture of civilian training and other aircrafts. It is proposed to exempt basic customs duty on raw materials imported for the manufacture of parts of aircraft to be used in maintenance, repair or overall requirements by units in the defense sector. Electronics. To deepen value addition in the consumer electronics sector, I propose to exempt basic customs duty on specified parts used in the manufacture of microwave ovens. Special economic zone. To address the concerns arising about utilization of capacity by manufacturing units in the special economic zones due to global trade disruptions, I propose as a special one-time measure to facilitate sales by eligible manufacturing units in SEZs to the domestic tariff area at concessional rates of duty. The quantity of such sales will be limited to a prescribed proportion of their exports. Necessary regulatory changes will be undertaken to operationalize the measures while ensuring level playing field for the units working in the DTA. Ease of living. To rationalize the customs duty structure for goods imported for personal use, I propose to reduce the tariff rate on all dutiable goods imported for personal use from 20% to 10%. रिवाइज रिटर्न करने का पहले 31 दिसंबर था डेट, वो 31 मार्च कर दिया। ये बहुत बढ़िया करा इन्होंने। अच्छा, इन्होंने एक चीज जो नोटिंग कराई है कि ये नॉमिनल फीस पे होगा। आज की तारीख में जो नॉमिनल फीस है वो 1000 और 5000 रुपए है एक तरीके से, मगर उसको भी इन्होंने कम करना चाहिए थोड़ा बहुत। अभी कुछ जनों के लिए 5000 रुपए मुश्किल पड़ जाती है चीजें के लिए। और बहुत जगह में प्रोसिक्यूशन को रिड्यूस करा है। अच्छा, प्रोसिक्यूशन को कम कर दिया, पेनल्टीज को हटा के फीस में कन्वर्ट कर दिया। कि पेनल्टीज के अंदर प्रॉब्लम ही होती है, पेनल्टीज जब भी लगी होती है तो आपको एक कंपनी को जो आईक्यू पे ले जा रही है तो पेनल्टी के लिए ना डीआरएचपी के अंदर उसको समझना है कि मैंने पेनल्टी कहाँ शो करी है, और पेनल्टी इन्वेस्टर्स और जो भी बोर्ड आईक्यू पे ले जाता है तो वहाँ पर नेगेटिव क्लेम आता है। अभी पेनल्टी को हटा के तुमने फीस में कन्वर्ट कर दिया। सीए को भी हटाना, इनकम टैक्स रिटर्न से हटाना पड़ता है कि आपको पेनल्टी दिए तो डिसअलाउ फीस नाउ इट वुड बी अलाउड एज अ डिडक्शन। डबल टाइम इफेक्ट करता है इसके लिए। एंड प्लस एक और चीज की बात हो रही थी जो प्रोसिक्यूशन रिड्यूस की, साथ साथ जो अपना लखपति दीदी स्कीम करके जो थी उसके बारे में कुछ बताया कि उसके लिए और इंक्रीज करिए कुछ वुमेन के लिए और स्कीम। उन्होंने अब क्या करा, शी मार्ट करके नाम लेके आएंगे लोग। ये शी मार्ट लेके आएंगे, जैसे आप उसके अंदर क्या है जो प्रेजेंटेशन करेगी, जो लीड करेगी वो लेडीज करेगी। अभी तो उनको लखपति दीदी कहते, अब उनको काम वगैरह भी एक्स्ट्रा दिया जाएगा। जैसे पहले जो सेल्फ हेल्प ग्रुप चलते थे, अब उनको नाम एक तरह से चेंज करके बेटर वे के अंदर उनको लेके आया शी मार्ट करके। तो वो इन्होंने यहाँ पे काम किया है। अब जैसे एक डिजिटल मीडिया को इन्होंने एक्सेप्टेंस करना स्टार्ट कर दिया कि ऑरेंज इकोनॉमी बनाएंगे हम लोग एक तरीके से आपके लिए। अच्छा, वो एक क्रिएटर्स के लिए भी जो क्रिएटर्स के लिए, डिजिटल क्रिएटर्स के लिए, जिसको मुंबई के लिए कह रहे हैं लोग कि अच्छा वहाँ पे उनको प्रेजेंटेशन वगैरह देंगे। हाँ, उसको देंगे। और फिर ये क्या कर रहे हैं कि जो पुराने जो लोग थे, पुराना काम देना देखते थे, उनको भी प्रमोट कर रहे हैं हम लोग। जो टियर 1 टियर 2 के अंदर लेके जाएंगे 5 लाख से जहाँ पे जो पॉपुलेशन है जिस भी सिटी की, तो वहाँ पे अगर ज्यादा है तो उसको हम लोग और प्रमोट करेंगे, क्योंकि उनको लग रहा है कि पुरानी विरासत जो है इंडिया की उसको आगे बढ़ाना जरूरी है एक तरीके से। वो फॉलो करेंगे। खेलो इंडिया मिशन लेके आई हैं। अच्छा, इन्होंने यहाँ पे एक चीज और मेंशन करी अपने बजट में कि स्टोरी टेलिंग को हम लोग बढ़ाना चाहते हैं। पहले ये लोग नहीं सोचते थे, मतलब कितनी बड़ी स्किल बना दी इन्होंने स्टोरी टेलिंग को बजट के अंदर नाम लेके आए। Anyway, the government has thought a lot for the budget for the future growth. शुरुआत के अंदर से इन्होंने दो चीजें बायोफार्मा और केमिकल। हाँ, बायोफार्मा का मुझे बायोफार्मा का मतलब इसे न्यू बिजनेस
पूरा बड़ा 20,000 करोड़ रुपए दिए हैं इसमें। हाँ। और उसके साथ सेमीकंडक्टर्स के ऊपर अगेन दे डबल Yes. गए के अंदर थर्ड 30,000 करोड़ थे, अब के बाद 40,000 कार्बन क्रेडिट्स में भी कार्बन कार्बन ट्रेडिंग के लिए भी डाल दिया। दिया इसके अंदर। दीज आर द बेसिक चेंजेस जो कि आपको और बाकी जैसे छोटे हैं वो तो फ्यूचर ग्रोथ के लिए जो इंजन जो इंजन है दीज आर द इंजन्स जिनको नए ऐसा वो एक तरह से नया जो डायरेक्शन है वो डायरेक्ट टैक्स ओवरऑल दिस इज द बजट डायरेक्शन के अंदर जो डिमांड आती थी पहले 20% जमा कराते थे, तो इसके अब आप आगे फाइट वो कर 10% हो गया। ओके, उसको 10% कर दिया। एक वन टाइम फॉरेन एसेट डिक्लेरेशन स्कीम आई है, कई होते हैं बाहर जाते हैं एम्प्लॉयमेंट लेके आ जाते हैं, वहाँ पे बैंक अकाउंट खोल लेते हैं, शेयर्स होते हैं, तो इंडिया आ जाते हैं और वो डिक्लेयर नहीं कर पाते। और अभी रिसेंटली मेरे ख्याल से जो नोटिफिकेशंस आई हैं खूब नोटिस आए हैं। खूब नोटिस आए ना कि हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके उसके ऊपर ऊपर डेट भी लगी थी 31 दिसंबर। अब इन्होंने बोला चलो ठीक है, सबको मालूम तो चल गया कि भाई कहीं ना कहीं इशू तो है पुलिस के पास में। लोगों ने डिक्लेयर नहीं करा। समझ में आया। मेरी अच्छा सिस्टर लिमिट का भी खुद सही है नोटिस आया कि मेरे खुद के भी कई क्लाइंटों ने कई हमारे भी आए तो अब वो अच्छा, शादियों के आ गई, बाहर से शादियों के आ सही गई, बात है। इंडिया में आ गई, अब वहाँ उसका था कुछ तो उसने डिक्लेयर नहीं And they have mentioned very clearly कि हमें इंफॉर्मेशन मिली है हमारे इंटरनेशनल यूएसए का नाम सबसे ज्यादा अभी दिया है तो इन्होंने। लोग घबरा भी बहुत गए उससे। यूएसए के साथ में शायद इनका इंफॉर्मेशन कुछ एक्सचेंज हुआ है अच्छा वाला। सबसे अच्छा तो यूएसए वाला आया है इसके अंदर। एक इन्होंने सबसे बड़ा चोट पहुंचा है कि क्या शेयर्स के अंदर एसटीटी बढ़ा दिया। हाँ STT एसटीटी बढ़ा दिया। ऑप्शन पेमेंट पे बढ़ा दिया इन्होंने। बोला है कि जो फॉरेन मार्केट में जो ई-कॉमर्स आप बिजनेस कर रहे हो उसमें हेल्प करेंगे, तो वो किस तरीके से वो होगा पूरा? तो इनको फाइनल पॉइंट पढ़ना पड़ेगा क्या क्या चीजें हैं। बट मेजरली जैसे अभी उन्होंने सेल्फ रिलायंट फंड निकाला है, जो चीजें हमारे यहाँ पे प्रोड्यूस हो सकती हैं, मैन्युफैक्चर हो सकती है, तो सर्विस भी आउटसोर्स हो सकता है, तो अल्टीमेटली उसके लिए पॉलिसीज थोड़ी ईज करी हैं ताकि जो हम एक्सपोर्ट करें वो बेटर करें। और हमारे पास जैसे एक्सपोर्ट के लिए स्पेसिफिकली उन्होंने क्या 15.5 सेफ हार्बर मार्जिन रखा है ना एक्सपोर्ट्स के लिए। हाँ वो 5 इयर्स के लिए आगे उसको कंटिन्यू करेंगे उस तरीके से। तो ये इन्होंने परसेंटेज फिक्स कर दिया और उसको किस हिसाब से देते हैं आगे उसमें मालूम चलेगा इसको कि किस हिसाब से आगे उसको प्रेजेंट करेंगे, किस हिसाब से यूज करने देंगे, तो क्या पॉलिसी बनाएंगे उसके लिए। अभी तो हिंट तो दे दिया इन्होंने कि भी एक्सपोर्ट के लिए हम लोग आईटी सेक्टर का बढ़िया करने वाले हैं और प्रेजेंटेशन जो रूल्स वगैरह हैं जिस हिसाब से देंगे वो देखने में मालूम चलेगा। भाई ये तो श्योर है कि आईटी सेक्टर को आगे ले जाने वाले आईटी सेक्टर ये 2-3 चीजें हैं। और मुझे उम्मीद थी, मतलब हल्का हल्का थोड़ा डाउट था, बट अच्छा हुआ कि लॉजिस्टिक्स पे बहुत सपोर्ट किया है। लॉजिस्टिक पे इन्होंने वाटर बेस बना दिया, Water कार्गो base बना बना दिया, कंटेनर क्लिप्स बना दिया, वो सब तरह से करना ही था इनको। जरूरी था, वो बढ़िया गया वो चीज। बाकी ये जो और अभी ये जैसे कह रहा है कि एग्रीकल्चर के सेक्टर में एक एआई टूल लेके आएंगे, एआई भारत विस्तार वो लेके आएंगे तो एग्रीकल्चर को तो प्रोडक्शन करना ही है, तो उससे जैसे जैसे प्रोडक्शन करेगा तो एआई टूल उसकी और हेल्प करेगा उसके अंदर, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, उसको देखें कैसे अब कहीं ना कहीं यूज होगा ही होगा इसका। एग्जैक्टली। बाकी 2000 करोड़ सेल्फ रिलायंट फंड में और डाल दिया है, तो दैट्स गुड। बाकी कुछ ऐसा स्टार्टअप्स के लिए मेजरली नहीं निकाला ना कि मतलब जैसे सीड फंड की जो लिमिट थी अभी इंक्रीज होना बहुत जरूरी थी। नहीं ऐसा मेरे को वो अभी- सुनने में नहीं आया है ना, अभी फाइन पॉइंट देख के और पता हाँ। चलेगा कि क्या क्या इन्होंने बट वहाँ अगर निकाला क्योंकि है। अभी वो फंड अबाउट टू ओवर है कि वो अच्छा, खत्म होने ही वाला है सीड फंड का। vanishing। हाँ, तो अल्टीमेटली दैट मींस कि या तो स्कीम बंद हो रही है नहीं, there would be या तो सेम प्रोविजन होगा, हाँ। उसको बढ़ा दिया होगा, उसको ऐसा कुछ नहीं है। और दूसरी चीज मुझे जितना सुनने में मिला है, आई वाज बिजी विद सम अदर पीपल, कि जहाँ पे टैक्स हॉलीडेज बहुत सारी इंडस्ट्रीज के लिए और ज्यादा दे दिया अभी है ना। टैक्स हॉलीडेज तो पहले ही हटा दिया इन्होंने, वो तो धीरे धीरे कम ही करते जा रहे हैं। लोअर कम कर रहे हैं, कम मुझे कर लग रहा रहे है हैं। कि इंक्रीज कर रहे हैं। नहीं, लोअर टैक्स रेजिम ला दिया ना 22%, नहीं, not for 15%। individuals, but जैसे कुछ इंडस्ट्रीज के लिए कुछ के लिए, हाँ, टैक्स कुछ हॉलीडेज डेटा सेंटर्स हाँ, में टैक्स हाँ, वो तो क्लाउड वाले के लिए भाई, हाँ। फॉरेन का आदमी यहाँ पे आके काम करेगा, यहाँ के आदमी को सर्विस देगा और यहीं पे अपना डेटा सेंटर करेगा तो उसको टैक्स हॉलिडे मिलेगा। भाई हमारे को टेक्नोलॉजी मिल रही है ना, हमारे को टेक्नोलॉजी मिल रही बट है। मुझे लगता है डेटा सेंटर्स अपने इंडियन के लिए टैक्स हॉलीडे देना बहुत जरूरी है। लोकल डेटा लेवल प्लेइंग फील्ड दिया नहीं है फॉरेन उन्होंने। टेक्नीशियन और फॉरेन इंटेलेक्चुअल्स हु आर कमिंग टू इंडिया, तो उसके लिए 5-6 साल के लिए टैक्स एग्जम्पशन दिया है। अच्छा, हाँ, वो जो है ना वो टोल के थ्रू दिया है, वाला जो टोल स्कीम वाला है ना, एक उसको भी कहीं ना कहीं ऐड करा है, जो प्रोफेशनल आते हैं ना उसके लिए उसको भी वहाँ पे ऐड ऑन करा है उन्होंने। अच्छा, तो उसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए टोल मैन्युफैक्चरिंग जो टोल- कैपिटल गुड्स बना रहे हाँ, हैं टोल उनके का लिए पूरा tax system वो holiday भी है और वो भी अलग है। हाँ दोनों,
दोनों अलग अलग दिया है उसको। तो आपके अगर सपोज कीजिए कोई डॉक्टर बाहर बहुत बड़ा डॉक्टर है और या बहुत बड़ा साइंटिस्ट है जो बाहर है आउट ऑफ इंडिया, इंडियन है जो बाहर एस्टैब्लिश हो गया एंड यू वांट टू कम बैक टू इंडिया, तो उसके ऊपर टैक्स एग्जेम्पशन की इंडिया की इनकम के ऊपर टैक्स भी कराया कुछ, आई होप दैट्स है कुछ है, वी हैव टू। और ऑल्सो टैक्स एग्जेम्पशन जो स्कीम है 2030 तक बढ़ा दी है, 2030 तक बढ़ा दी, तो वो तो जो चल रही है अच्छी है। अभी तो बहुत सारे बिजनेसेस, और उसमें पहले मतलब एक लिमिटेशंस थी कि स्पेसिफिकली कुछ इंडस्ट्रीज कर सकती हैं, और अब मैंने देखा कि कंस्ट्रक्शन कंपनीज को भी मिला है टैक्स एग्जेम्पशन। तो जो रियल एस्टेट फंड के थ्रू जाएगा टैक्स एग्जेम्पशन कंस्ट्रक्शन कंपनीज को, साथ में जो कंपनीज जो बिल्डिंग बनाती है, क्रेन्स है, रियल एस्टेट वाली, रियल एस्टेट के अंदर रोडवेज है, ब्रिजेस है, कैपिटल गुड है, उसके अंदर भी एग्जेम्पशंस थी, उसके लिए भी फंड्स थे। उसको रीडिजाइन कराया उन्होंने। अभी क्या होता है कि कुछ उनका बैंकरप्ट हो जाता है, यूज नहीं कर पाता, कहीं फंस जाता है मामला, उनकी एसेट फंस जाती है, अब उसको यूज नहीं कर सकते वो लोग, तो उसको बोलेंगे हम लोग इसको सोचेंगे कि क्या करा जा सकता है। कोई एक बिल्डर ने काम करती है, जैसे आज रेरा के अंदर काम या आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट दे देते हैं। अब सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस चीज को सोच रही है, क्योंकि डेब्ट वाली एसेट्स हैं, जो फंसी हुई एसेट्स हैं रियल एस्टेट, उनको कैसे यूज करा सकते हैं। हाँ, वो था फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट के जो एसेट्स हैं उसके लिए वो रिट्स लेके आएंगे। हाँ। और रिट्स के अंदर दैट कंपनी वुड बी वो वहाँ पे लिस्ट करेंगे और उस कंपनी से जो रेंटल आएगा वो रिट्स के थ्रू पेमेंट करेंगे। हाँ। ताकि वो जो उनकी जैसे सपोज कीजिए आज बीएसएनएल के पास में खूब एसेट्स हैं, बिल्कुल एसेट्स है बीएसएनएल इस वक्त बहुत स्ट्रांग सही बात कंपनी है, उसके प्रॉफिट्स लॉस में एसेट्स बहुत ज्यादा है। अब उसके एसेट्स को मोनेटाइज करना है। ऐसे और भी गवर्नमेंट कंपनीज है, पीएसयूज जिनके पास में बहुत बड़े-बड़े एसेट्स हैं, करना ही मेन सेंटर में, सिटी के सेंटर में लेके बैठी बट यूज नहीं आ रही, तो उसको रिट्स के थ्रू मेरे हिसाब से वही कुछ है, उसको लाइन ऑफ करना पड़ेगा और उसके रिट्स के थ्रू उसको। अभी मैंने अभी दो तीन पॉइंट और ले रहा था जिन्होंने अपडेट्स आ रही हैं, तो उसमें से एक तो चलो डीप टेक के लिए, बट उसके नीचे सबसे इम्पोर्टेंट आ रहा है वो कॉर्पोरेट आ रहा है जो हम बात कर रहे थे। वो एमएसएमई के लिए उन्हें बेनिफिशियल है कि भाई जो आईसीआई है और आईसीएसआई है उसको वो एक तरीके से कॉर्पोरेट मित्र बनाएंगे। अब वो कैसे, मतलब वी हैव ड्यूरिंग आवर प्रिविलेज डिस्कशन फील दैट पेन की एक बैंक होता है और एक एमएसएमई होता है। एमएसएमई बेचारा तो अपना प्रोडक्शन कर रहा है, इंडिविजुअल आदमी होता है, बैंक अपनी जगह होता है, बैंक बोलता है मेरे को नहीं समझ में आ रहा है, एमएसएमई बोलता है मैं कैसे तेरे को समझाऊं। तो देयर इज अ रिक्वायरमेंट टू हैव सम पर्सन इन द मीडिएशन जो इसको समझाए, उस लाइन पे लेके आए। अब वो बजट में लेके आए, तो बजट के अंदर ही उसको उन्होंने और सबसे नाम दे दिया। It was during our preliminary discussion, आप शायद आए थे, हमारा डिस्कशन हुआ तो ये बात हुई थी कि साहब ये कोई पेन है जो जिसको अपन वो बहुत अच्छा है। ये चीजें स्ट्रीमलाइन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, और मुझे लगता है कि जो जितनी सारी बातें हम यहाँ पे भी एक थोड़ा डिस्कशन और करते भी हैं, तो जो डिस्कशन वहां तक पहुंचना चाहिए कॉर्पोरेट मित्रास के थ्रू ही बेस्ट पहुंच पाएगा, बिकॉज़ जो टेक्निकल चीजें हैं वो एमएसएमईज तक वहां पहुंचने के लिए वी नीड अ वेरी लार्जर स्कोप। We are doing our bit, but वो एक क्या होता है फॉर्मूलेस तरीका होगा। साहब क्या होता है प्राइवेट बैंक के अंदर उनकी पूरी फोर्स होती है जो उसको केस को सैंक्शन कराने में लगी रहती है, और पीएसयू के अंदर या तो डीएसए होते हैं और कोई होता नहीं। गवर्नमेंट के जो वो बैंक के जो एम्प्लॉयज होते हैं उनके पास में इतना स्किल अप नहीं होता बैंक के पीएसयू के एम्प्लॉयज के पास में कि उसको समझ पाए, उसको अंडरस्टैंड एक तरीके से प्रॉपर कम्युनिकेशन का जो गैप था ना वो उन्होंने फुलफिल करा है। उसको फुलफिल करने के लिए उन्होंने सीए और सीएस इंस्टीट्यूट को बोला है कि भैया आप आए और आप कराएं इस काम को करा के आप आगे बढ़ें। Exactly. That is very important. That is very important. एक And तरीके it was feeling कि आपका PSU बैंक की लैंडिंग नहीं बढ़ रही थी because of this only. Exactly. तो वो लैंडिंग अब इससे बढ़ेगी definitely. और जो बैंकिंग रिफॉर्म्स आएंगे उनके अंदर भी अब कहीं ना कहीं इससे लिंक करेंगे ये लोग वो प्रोफेशनल की, जुड़ी ठीक है है आपस में एक दो दिनों जो एक बजट कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है एक दूसरे से। Exactly. भाई एक जगह को प्लस करेंगे दूसरी जगह आगे आप होगा, फिर दूसरे को करेंगे तो आगे। बट मुझे एक चीज मतलब जो इस पूरी चेन में जैसे हम बोल रहे हैं कनेक्ट में एक चीज जो मिस पार्ट है शायद मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, जैसे आपने जेम मॉडल लगा तो प्रोक्योरमेंट पे ज्यादा फोकस नहीं दिया। प्रोक्योरमेंट की प्रोक्योरमेट पिछले साल शायद पिछली बार दी थी, इस बार उन्होंने पेमेंट्स में और सेटल में ज्यादा फोकस करा है। अच्छा। क्योंकि शिकायतें ये आ रही है कि भाई हमारे पेमेंट्स हो नहीं रहे, रुक रहे हैं, एक तरीके से वर्किंग कैपिटल है वो ब्लॉक हो जाती है। हमारा एक इनवॉइस ब्लॉक हो गया, दो इनवॉइस ब्लॉक हो गए, तो भाई इतने की कैपिटल रहती है, और जब ब्लॉकेज आ जाता है तो गवर्नमेंट देखते कुछ ना कुछ करना चाहिए इनिशिएटिव। उनको बोला कि ठीक है अब हम लोग इनवॉइसिंग को भी यहाँ से आपका ट्रेस करेंगे यहाँ पे। एग्जैक्टली सॉर्टेड।
एनीथिंग एल्स जो आपको लगता है कि बहुत मेजर है या थोड़ा ब्रेक आपकी गवर्नमेंट का बजट फॉरवर्ड लुकिंग है, जैसे डायरेक्ट टैक्सेस के अंदर लिटिगेशंस कम करने की कोशिश करिए। वेरी इम्पोर्टेंट ईज ऑफ बिजनेस जो है हाँ। उसके ऊपर ध्यान दिया है, जो कि मेजर प्रॉब्लम है। हाँ, जो पंगे मेजर प्रॉब्लम जो कि गवर्नमेंट के आदमियों से जो एमएसएमई डरता है। दूसरा जिससे सही बात। एफडीआई जो है एफडीआई डरते हैं, मैं तो बहुत बड़ा प्लस जैसे आप हाँ बोलिए एफडीआई जो नेचुरली आती है तो दे आर फियरफुल की ऑफ हाँ। स्टेबिलिटी की इश्यूज है, सो दे आर टेकिंग मनी बैक। वो जो इशू है तो when the investor sees that yes there is a stability, अब जैसे फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल कर रहे हाँ, हो, बिल्कुल। बिजनेस से there is a stability. If your debt is less than okay, ratio is less, you are reducing, then there is a stability and then the confidence. दूसरा जो जिस तरह का बजट आ रहा है वो फॉरवर्ड लुकिंग दिख रहा है। Naturally, फॉरवर्ड लुकिंग बजट को देखते हुए इन्वेस्टर्स को ओवरसीज मार्केट को ये लगता है कि हाँ स्टेबल गवर्नमेंट है are the measures एंड दे आर थिंकिंग लॉन्ग टर्म, दे आर थिंकिंग लॉन्ग टर्म। मेजर ईज ऑफ बिजनेस के लिए बहुत मेजर्स लिए They are उससे trying to do इन्वेस्टमेंट it. आते Yes. हैं और इससे अभी इसमें अपन देखेंगे तो इन्होंने जो बेस लेवल है, ग्राउंड लेवल है, जैसे टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, जो लोएस्ट लेवल पे जाने की कोशिश कर रही है गवर्नमेंट। भाई ठीक है, हमने आपको वाले साइड को तो कॉपी दे दिया, इस बार हम लोग छोटे से स्टार्ट करते हैं, उनको भी कुछ देना स्टार्ट करते हैं। जैसे यूथ के लिए इन्होंने ट्रिपल ई का नारा दिया, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। वो एक इन्होंने कुछ अलग सोच के दिया है कि भाई ठीक है, यूथ को तैयार करो जगह जगह पे, जो सिटी है, जो लोअर ग्राउंड है, उसको तैयार करो। वो एक अच्छा लगा इसके अंदर। और हेल्थ सेक्टर पे तो मेडिकल टूरिज्म हब बनाने की कोशिश कर रहे हैं लोग। वो ठीक बहुत है, जरूरी है मेडिकल टूरिज्म इंडिया में बहुत जरूरी है। बाहर बहुत हाई कॉस्ट Medical tourism कर रहे हैं, मतलब एनआरआईज जो हैं Animal production में कर रहे हैं, इनको जानते agriculture में हैं कर दांत रहे में हैं, दर्द होता है वो coconut production में कर रहे हैं। इंडिया में भी ठीक रहता है। एंड ठीक सर कराते मैं हैं। इसके लिए जेन्युइन आपको एक चीज बताऊंगा, एक प्रैक्टिकल केस है वो। अगर इफ एनीबॉडी इज लुकिंग फॉर द स्टार्टअप्स एज वेल, बिकॉज़ वी हैव मेट विद मेनी स्टार्टअप, बहुत बिजनेसेस से अपनी बात हुई है। ये प्रैक्टिकल बिजनेस भी है इंडिया में। हाँ। नहीं है, अगर मैं फॉरेन क्लाइंट लेकर आता हूँ, लेट्स से अगर उसका $1000 या $5000 का बिल बनता है, तो उसमें से स्ट्रेट फॉरवर्ड 25 से 30% मेरी कमीशन है। हाँ, हाँ। वो कोई भी बैंक, मैं कोई भी हॉस्पिटल में जाके बात बोल सकता हूँ, अपोलो में जा सकता हूँ, फोर्टिस में जा सकता हूँ, बोल सकता हूँ मेरे पास एक इंटरनेशनल क्लाइंट है, पेशेंट है, अगर आप सर्व करना चाहते हो तो उसके बिल के अंदर स्ट्रेट फॉरवर्ड 25-30% फ्लैट वो कमीशन दे रहे हैं। तो मतलब ये इतना बड़ा ये अपॉर्चुनिटी बहुत है। अपॉर्चुनिटी है ही। मीडिएटर के लिए तो हमेशा अपॉर्चुनिटी रहती है चीजों की। ये जो हमारा ये अपॉर्चुनिटी मतलब medical tourism वाला एक अच्छा काम है। increasing the cost of the foreign medical tourism, उसकी cost they are coming here to reduce the cost. If you are उनको increasing मालूम है। नहीं, it, वो नहीं, cost नहीं, कम ही आप वो रहेगी। समझिए उनके विदेश की कॉस्ट से इंडिया में कॉस्ट That I कम। do पहला agree. पॉइंट That I agree. पहला पॉइंट सेकंड पॉइंट आपका यहाँ पे जो प्रोफेशनल सर्विस मिल रही है वो विदेश में नहीं मिल पा रही। पर्सनल अटेंशन अवेलेबिलिटी जो है हाँ। वो नहीं। Availability नहीं। बस तो इसलिए इंडिया में क्रिटिकल बीमारी होगी तो वो वहीं करेगा, क्रिटिकल को ज्यादा हो। जैसे नॉर्मल Dental- दांत ही ठीक कराना है, आंखों का कुछ इलाज कराना है, Minor और जिसे इससे- कहते हैं इसके अपन, minor related आपको बाकी। कुछ करानी है, कुछ भी चीजें वो सब इंडिया में आके कराते हैं। वो पोस्ट केयर भी अच्छा है अपने यहाँ का। हाँ। वहाँ से अच्छा यहाँ पर है पोस्ट केयर जो चीज है ना। Post care भाई अच्छी ठीक है, है। आपने ट्रीटमेंट कराया, ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट आप लोगों ने सारी सर्विसेज दी आपको, और पोस्ट केयर का जो फैसिलिटी है ना वो अच्छा बताते हैं अपने यहाँ। ताकि वो आपका कई इन्होंने क्लियरिंग एजेंट्स को इन्होंने सर्टिफाइड क्लियरिंग एजेंट्स कर देंगे या सर्टिफाइड इंपोर्टर्स या एक्सपोर्टर्स कर देंगे, जिसके माल आपको चेक करना, कंटेनर को नहीं तो हर कंटेनर चेक होता है, उसको कंटेनर को चेक नहीं करेंगे और दे सर्टिफिकेशन दे देंगे। इसके अंदर इन्होंने क्या करा, कुछ नोटिफाइड गुड्स करेंगे ये लोग कि इसकी जो है विदाउट किसी इशू के क्लियर हो जाएगा, ना तो इनमें और ना आउट में, दोनों जगह आपको इजी वन में काम हो जाएगा। हाँ, ठीक है। एक इन्होंने ये चाहिए जिस भी कंटेनर की या कार्गो की इलेक्ट्रॉनिक सीलिंग है, मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हो आप उसको फ्रॉम डे 1 से लेकर डे एंड तक, मतलब जिस दिन वो पैक हो गया वहां से लेकर 20 तक, तो सबसे इजी उसकी रहेगी, उसमें चेक नहीं होगा कोई भी आपका। गारमेंट एक्सपोर्टर है जयपुर से उसको अपने शिप के थ्रू नावा शिवा से भेजना है, तो उसके यहाँ पे इलेक्ट्रिक सील लग गई, वो नावा शिवा में दोबारा चेक होगा यहाँ से। बस एक बार चेक हुआ और फाइनल क्लियरेंस पे चल जाएगा। अब वो Single window। हाँ। सिंगल विंडो जो भी क्या कहते हैं कि वहाँ
वहाँ पे जब एक बार रुक गया कार्गो तो उनका डे वाइज चार्जेस स्टार्ट आपको इंस्पेक्टर लिमिटेड है या जो भी मैन पावर लिमिटेड होती है तो वो कहते हैं कि इस कॉस्टिंग को बचाया जाए। ये मैन पावर भी बचा रहा है, कॉस्टिंग बचा रहा है, टाइम कंज्यूमिंग भी है। तो जब सील लगी हुई है तो सब सबसे इम्पोर्टेंट क्या होता है देखिए इसमें जैसे गारमेंट ट्रेडिशन ये सब टेस्ट चेंज होते रहते हैं बिल्कुल। और आपने यहाँ पे मैन्युफैक्चर करा हो उसको आप लोकेशन पे पहुँचने के महीने पर लगा रहे हो तो आपका एक तो कॉस्टिंग आपका वो पैसा रिटर्न होने का जो पैसा ऊपर पहुँचेगा तब वो भेजेगा इंडिया में पैसा तो आप 15 दिन का होना शॉर्ट है इंडिया में पैसा यही एक हेजिटेशन की वजह से हमारे देश का एक्सपोर्ट कम हुआ करता था। ये यही हेजिटेशन की वजह से कि यार मेरा माल न जाएगा। नॉट हेजिटेशन इट इज अ हिंड्रेंस। सही वर्ड है। मेरा एक क्वेश्चन था इसी कंटेक्स्ट में बिकॉज अब ये जब हमारा गैप कम हो जाएगा तो क्या इसकी वजह से एग्री और डेयरी इनका एक्सपोर्ट आपको लगता है कि ज्यादा होने के चांसेस है? और इसमें जो साइकिल है क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स डेफिनेटली उनकी लाइफ साइकिल थोड़ी कम होती है। पेरिशेबल प्रोडक्ट्स जो होते हैं तो पेरिशेबल प्रोडक्ट्स को नेचुरली लाइफ उनकी कम होती है तो अच्छा when we are decreasing the time period naturally it will have to अच्छा best use within 6 months of the manufacturing। अब आपका एक महीना तो आपका ट्रैवलिंग में जाएगा तो 15 दिन अगर बच रहे हैं तो आपको 15 दिन कंज्यूमर को मिल गया। और एब्सोल्युटली क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इसकी वजह से जो ऑर्गेनिक का भी बूम चल रहा है उसको काफी सपोर्ट और काफी अच्छा पुश मिल सकता है बिकॉज नाउ दे कैन प्ले ऑन दैट विदाउट प्रिजर्वेटिव्स एंड अदर स्टफ। क्योंकि अभी जहाँ तक है और जिस तरीके की बातें चल रही है कार्सिनोजेनिक प्रोडक्ट्स ज्यादा आ रहे हैं बिकॉज जितना भी प्रिजर्व फूड है और जितनी लंबी उसकी शेल्फ लाइफ हो रही है कहीं ना कहीं दैट इज समहाउ अफेक्टिंग दी स्मॉल स्केल बिजनेसेस द ग्राउंड लेवल वो चीज है। तो उसमें आपके हिसाब से वैसे अपन आज देखें ना तो ये जो दोनों प्रोडक्ट्स है ना जैसे अपन एग्रीकल्चर की आप बात कर रहे हैं डेयरी वाले की बात करें इनकी टाइम लिमिट होती है तो उस टाइम के अंदर इनको क्लियर करना ही पड़ता है। अगर ये नहीं करते हैं तो ऑफिसर्स के ऊपर आ जाती है कई बारी बात। लेकिन हम लोग पर्सनली एक्सपोर्ट का काम देखते हैं इसलिए हमें मालूम है इन दोनों केसेस के अंदर एग्रीकल्चर वाले में और डेयरी वाले के अंदर आ जाता है। अच्छा इसके साथ में जब फिशरी वाला जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी भी टाइम लिमिट उन्होंने दे रखी है कि यू हैव टू क्लियर। ओके ठीक है उसमें और कितना आपके हिसाब से पुश मिलने के चांसेस है? कुछ तो मिलेगा जो टाइम लिमिट खत्म होती है पहले तो कम हो रही है प्लस आपको इजी क्लियरेंस मिल गया तो उनको मालूम है जो चेक करने वाले थे ऑफिसर्स उनको मालूम है कि भाई गाइडलाइन ऐसी है उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। पहले के स्पष्ट गाइडलाइन नहीं थी, क्लियर कट गाइडेंस नहीं थी कि भाई क्या करना है क्या नहीं करना। उनकी इच्छा हुई तो रोक लिया। उनके ऊपर एक मोरल सपोर्ट रहता था, मोरल बटन रहता था कि यार ये चीज देख लो खत्म हो जाएगी अपने ऊपर बात आ जाएगी। तो प्रायोरिटी वो उसको लेके चलते थे। मगर अब प्रायोरिटी से पहले उनको देखना पड़ेगा कि लॉ एंड ऑर्डर हिसाब से फॉलो करो। तो बेटर तो है कि वो करेंगे अब इस चीज को। तो हम ये कह सकते हैं कि इन सम पीरियड हमारे जो एग्री हमारे जो डेयरी रिलेटेड जितने भी स्मॉल स्केल बिजनेस ओनर्स हैं उनको एक बहुत अच्छा कहीं ना कहीं बूस्ट मिलने वाला है एंड दे विल बी हैप्पी विद दिस काइंड ऑफ ये जो टाइम लिमिट खत्म हुई है इसके अलावा एक चीज और बूस्ट मिलने वाली है। उन्होंने बोला कि हम लोग कार्गो बनाएंगे, कंटेनर बनाएंगे और वाटर बेस बनाएंगे। जब वाटर बेस कार्गो कंटेनर एक जगह पे बनेंगे ना साउथ साइड की सिटी में, जैसे सर से बात हुई थी साउथ सिटी को बहुत बेनिफिट दिया इन्होंने। तो कहते हैं वहां से ये इनिशिएट होती है, मेजरली काम देखेंगे तो वहीं से इनिशिएट होती है। टाइम लिमिट तो कम होना ही होना है, अब उनकी कॉस्टिंग भी कम होनी है। और ये जब कह रहे हैं कि ये जो 4 और 5 रहेगी हम लोग वहाँ पे 5 यूनिवर्सिटी बनाएंगे एक तरीके से। जब 5 यूनिवर्सिटी बनाएंगे तो लोगों को वहीं की तरफ एजुकेशन होगा, एम्प्लॉयमेंट होगा और एंटरप्रेन्योरशिप होगा। वो भी उसको आप फॉलो करने वाले हैं ये लोग जिससे आप ये डिसाइड कर रहे हैं। These shipping, transportation reforms were highly required. वो भी मैडम को बहुत strong custom clearance बहुत required था। अभी एक तरीके से हमारे पास क्या है, सिटी तो है पर वो अनऑर्गेनाइज सिटीज हैं। कोस्टल एरिया के पास में अनऑर्गेनाइज सिटी, और अब जिस हिसाब से देगा अब उसको ऑर्गेनाइज वे के अंदर काम करने वाले हैं सब कुछ। वो एक बेनिफिशियल होने वाला है जो हिसाब से डिसीजन कर रहे हैं ये लोग उस हिसाब से ही। इस पूरे उसमें अगर हम वेस्टर्न इंडिया की बात करते हैं जैसे कि हम राजस्थान को भी इसमें इंक्लूड करते हैं तो आपको क्या लगता है कि यहाँ पर किस तरीके की इंडस्ट्रीज में अब बूम आ सकता है आफ्टर दिस? देखो इसके अंदर 2 तरीके की इंडस्ट्रीज के अंदर बूम आने के चांसेस है। एक तो हमारा जो है बेसिकली एग्रीकल्चर वाला। अभी जो किसे बोल रहे हैं कि सोलर का इन्होंने काफी कम करने का प्लान किया है। तो सोलर कहीं ना कहीं हमारे को बेनिफिशियल करेगा। दूसरा अभी इन्होंने जो कहा
एक तो हेरिटेज को प्रमोट करेंगे, एक कल्चर को प्रमोट करेंगे, एक हिस्टोरिकल साइट्स बनाएंगे, ठीक है। इसके अलावा ये लोग कह रहे हैं कि हम लोग टूरिज्म के अंदर यूथ को आगे करेंगे और 10,000 गाइड्स को प्रॉपर गाइड करेंगे और टूरिज्म को हब बनाने की कोशिश करेंगे। तो कहीं ना कहीं अभी राजस्थान इस सिटीज में हमारे पास बहुत एक तरीके से आगे भी अच्छा है हम्म। और हाई वैल्यू है इसकी। ओके, तो इसका मतलब टूरिज्म के साथ डेफिनेटली हॉस्पिटलिटी है ही बैकग्राउंड में, एंड उसके साथ साथ जो टूरिज्म इन्फ्लुएंस्ड जो भी इंडस्ट्रीज है, जैसे मेडिकल टूरिज्म काफी बढ़ रहा है, एग्री टूरिज्म भी काफी बहुत बढ़ रहा है, स्पेशली इन डेंटल आई बिलीव दैट इज समथिंग। इसके अलावा जो एस्थेटिक वो है इंडस्ट्रीज वो काफी ज्यादा बूम और कर रहा है। टेक्सटाइल पार्क का भी अनाउंसमेंट किया है। अमेजिंग टेक्सटाइल पार्क अभी वो के पहले भीलवाड़ा के पास में टेक्सटाइल हाँ। हो सकता है एक और टेक्सटाइल Okay, and handicraft other than textile bhi, I believe, because Rajasthan has a very rich handicraft. There are some schemes which are being announced for self-help groups Okay. और small handicraft Artisans के लिए। artisans के लिए। तो उसके basis पे मतलब यहाँ पर again read the final part, उसके basis के they are funding them or giving them support training, उस तरह के उन्हें develop कर रहे हैं। करे हैं, हाँ, मतलब कहीं ना कहीं हम जिनकी बात करें, बिकॉज अल्टीमेटली जो आर्टिसंस होते हैं दे रिमेन ऑलवेज अंडर प्रिविलेज्ड, क्योंकि पूरी सप्लाई चेन में दे आर मेकिंग एवरीथिंग, बट अल्टीमेटली वो जो बेनिफिट्स होते हैं वो उन तक नहीं पहुंच पा रहे होते हैं किसी भी रीजन से। एंड इसकी वजह से व्हाट वी रियलाइज्ड, बिकॉज वी बीन वर्किंग विद द आर्टिसंस एज वेल, कि जो एक्चुअल में जो कोर फॉर्मेट है इट्स डाइंग। और अभी हमको क्या है कि शायद ये कह रहे हैं कि 2000 करोड़ रुपीस का हम लोग फंड इनके लिए देंगे। ओके और टियर 2 सिटी और टियर 3 सिटी के लिए स्पेसिफाई करेंगे हम लोग और उनको ये देंगे। ओके ओके और जो तीर्थ स्थल वगैरह जो होते हैं उनको हम लोग करेंगे। और उसके आगे ये कहना चाह रहे हैं कि जो बेसिक लेवल पे ग्राउंड लेवल पे वर्किंग है हम लोग उनको प्रमोट करना चाहते हैं। बजट ये बता रहे हैं ना, जैसे मैन्युफैक्चरिंग के लिए कह रहे हैं, प्रोडक्शन के लिए कह रहे हैं, तो अभी ये टियर 2 टियर 3 पे फोकस ज्यादा है इसका। ओके, तो उसको ये प्रोडक्शन लेवल पे, मैन्युफैक्चरिंग लेवल पे, ग्राउंड लेवल पे वर्किंग करना चाहते हैं। ऑल्सो देखा जाए तो पूरा जो बजट है, जैसे हम पहले बात करते हैं, एक दूसरे से कनेक्टेड है। जैसे हम लॉजिस्टिक्स की बात करते हैं, लॉजिस्टिक्स जो लास्ट माइल है उनको पता है कि वो मेजरली जो हैंडल किया जाता है वो टायर 2 टायर 3 सिटी से ही किया जाता है। उनको ये चीज़ पता ही है कि वो वहाँ से मेंशन किया जाएगा टायर 1 सिटी, वहाँ से पकड़ेंगे कि वो पहले छोटे वर्ग के लोगों को वहाँ से लॉजिस्टिक्स ठीक करेंगे, फिर लॉजिस्टिक्स से एक्सपोर्ट ठीक होगा, एक्सपोर्ट से हमारी जो बड़ी जो हमें इन्वेस्टमेंट बनानी है उसके लिए हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस लाइव है। तो ऑल्दो इट इज़ अ वेरी कनेक्टिंग आई गेस बजट। एंड उसके साथ साथ जो क्वेश्चंस अपने पास आए हैं कैंपेन के लिए वो एक बार डिस्कस करते हैं। यस एब्सोल्युटली। सो सबसे पहला तो ये था जो हम डिस्कस कर चुके हैं, स्मॉल मैन्युफैक्चरर्स हैं मेजरली, उनके लिए 2026 में क्या क्या पॉइंट्स है। तो जो मुझे पहला पॉइंट लगता है वो यही है कि क्रेडिट अवेलेबिलिटी में सिडबी और इंक्लूजन्स भी ला दिए इक्विटी बेस के लिए, बट अगर छोटा है तो उसके लिए क्रेडिट कार्ड की भी लिमिट और जो लास्ट ईयर क्रेडिट कार्ड लॉन्च किए थे वो भी इंक्रीज कर दे, उसकी लिमिट बढ़ा दी। तो मतलब जो छोटे स्केल के बिजनेसेस हैं उनके लिए और ध्यान देना चालू करें। इसके अलावा आपने इक्विटी सपोर्ट एसएमई ग्रोथ के लिए उन्होंने 10,000 करोड़ का हाँ, फंड जिसके ऊपर इक्विटी सपोर्ट देंगे। ऐसे सेल्फ रिलायंट फंड भी उन्होंने 2,000 करोड़ का फंड फ्रेंड्स तो आएंगे जो एसएमई ट्रेड्स के लिए है जो आपके वो और उन्होंने नाम दिया उसको ग्रोथ फंड, पर्टिकुलर ग्रोथ फंड, एमएसएमई ग्रोथ फंड 10,000 करोड़ रुपीस का रहेगा। सबसे इम्पोर्टेंट अगर आपके कस्टमर्स जो सुन रहे हैं उनके लिए जो पेन था, जो अपना डिस्कशन था बैंकिंग कम्युनिकेशन चैनल का मिसिंग, उसके बीच में उन्होंने कॉर्पोरेट मित्रास को लेके आए ताकि सम प्रोफेशनल कैन एडवाइज देम, और उसकी कॉस्ट हो सकता है दे विल चार्ज फ्रॉम द बैंक ओनली। यस, क्योंकि उनके एसएमई के ऊपर नहीं जाएगा तो हो सकता है उसका बेनिफिट उनको कॉर्पोरेट मित्र के लिए मैं चाहूंगा कि ये वाला कॉर्पोरेट मित्र वाला पॉइंट है ना, ये आप डायरेक्टली ही ऑडियंस को समझा देना 2 मिनट लगा के, तो वो ज्यादा बेटर रहेगा। कॉर्पोरेट मित्र इसका मतलब ये जो समझ में आ रहा है सी इंस्टीट्यूट एंड आईसीएआई के अंदर दे आर ट्राइंग कि आपके जो प्रोफेशनल हैं वो एमएसएमई को सपोर्ट करें। एमएसएमई चूंकि बैंक के पास जाता है, एमएसएमई एक इंडिविजुअल आदमी खुद बनाता है, उसके उसमें 4-5 आदमी काम करने वाले होते हैं, तो छोटी सी टीम होती है, उसके पास में सिंपल ऑर्डर आता है और ऑर्डर को मैन्युफैक्चर करने में वो जुझा रहता है। अब बैंक के पास में जाना, बैंक को फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स देना, केवाईसी डॉक्यूमेंट्स देना, लोन एप्लीकेशन को लगाना, उसका क्रेडिट असेसमेंट्स देखना, ये सारा काम एक टेक्निकल वर्क है।
जिसमें हो सकता है कुछ बैंकर्स, PSUs वगैरह कुछ नहीं कर पा रहे, पब्लिक सेक्टर बैंक्स नहीं कर पा रहे, तो फॉर सपोर्टिंग दैम इन्होंने गवर्नमेंट ने अभी कॉर्पोरेट मित्रा करके लेके आए हैं, अकॉर्डिंग टू विच वी अंडरस्टैंड कि CA एंड कंपनी सेक्रेटरीज कैन सपोर्ट देम। बैंक के पैनल में आएंगे वो, बैंक के पैनल में MSME को सपोर्ट करेंगे। तो आप बैंक में जाइए, अपनी एप्लीकेशन दीजिए, तो कॉर्पोरेट मित्रास आपको सपोर्ट करेंगे और बैंक से क्लियरेंस जो होने में हिंड्रेंस आती है वो क्लियरेंस पास होगा। तो इन शॉर्ट अगर मैं अपनी ऑडियंस को बताऊं तो जो हमारा एक मेजर प्रॉब्लम थी कि बैंक से तो अप्रूवल आ चुका है, कि गवर्नमेंट से अप्रूवल आ चुका है, बट बैंक डिसबर्स नहीं कर रहा है, तो वो चीज को सॉर्ट करने के लिए ही बीच में कॉर्पोरेट मित्रास लगाया। और मुझे लगता है इट विल बी नॉट लिमिटेड टू ओनली CAs एंड अदर पार्टी, दे विल आल्सो फेच अदर पार्टीज एज वेल, कि जितने कॉर्पोरेट मित्रास में आए लोग, टेक प्रोफेशनल लोग, और जो हेल्प कर पाए कनेक्शन में, और ज्यादा बेटर होगा। तो सबसे मुझे लगता है कि इस बजट का MSME के लिए ये मेजर पार्ट है, जो हम काफी सालों से भी डिस्कस कर रहे हैं, और आज आते भी हमने सबसे पहले यही डिस्कस किया था। और ट्रेंड के थ्रू भी मैं चाहूंगा, हो सकता है हाँ, ट्रेंड्स के अंदर ट्रेड्स के थ्रू भी आप इनवॉइसिंग हाँ, करें ना, और ट्रेड्स के थ्रू भी जो एक और लाइन पढ़ने में आई थी तो समझ उन्होंने ना these receivables को इनवॉइस डिस्काउंटिंग के अंदर रिसीवेबल्स को उन्होंने एसेट्स माना है। ओके, इट कैन बी अ मॉर्गेजेबल आइटम। मॉर्गेजेबल नाउ पहले इनवॉइस को बोलते थे, इनवॉइस तो ठीक है आपने माल बेच दिया 10 लाख का, तो इसकी इनवॉइस जनरेट हो गई, हम इसके ऊपर फंडिंग नहीं करेंगे, आप एसेट दो कोलैटरल के साथ। एग्जैक्टली। तो नाउ दे विल से कि इनवॉइस को भी हम एसेट मानेंगे एंड वी विल फंड ऑन दैट। मेरे को ऐसा कुछ और उसको जेम पोर्टल पे आइडेंटिफाई भी कर दिया इन्होंने डायरेक्ट। हाँ। अब उन्होंने जेम पोर्टल के थ्रू आप देख सकते हो कि आपकी ये इनवॉइस पेंडिंग है, हाँ। तो इसको आप एसेट माना जाए रिसीवर्स का। ये पॉइंट जो है मुझे लगता है कि अगेन इसी पॉइंट कॉर्पोरेट मित्रास के अंदर भी ये एडिशनल पॉइंट हो जाएगा कि जब लोन लेने जाता है एक MSME, तो उसको बैंक यही लोग क्या के मना करता है कि मुझे मतलब नहीं आपने कितना बेचा है। हाँ। अब पेमेंट तो नहीं आई है ना, तो एसेट नहीं है, तो जब तक पेमेंट नहीं आई है, इनवॉइस भी कटा है, तो भी वो काउंट किया जाएगा एज एन एसेट, तो जिससे आपकी प्रोफाइल स्ट्रांग हो जाएगी फॉर द लोन और ये क्रेडिट। सब CGTMS और गवर्नमेंट क्रेडिट स्कीम्स के थ्रू सपोर्टेड रहेगा। एंड जो पहले CGSS 20 करोड़ थी, लगा तो CGTMS का वापस से 20 करोड़ एविडेंट कर दिया कि 20 करोड़ जो इवेंट रहेगा। बैंक को बेनिफिट आएगा इससे। आइए सर, प्लीज हैव अ सीट। ठीक है, तो अगला अपना जो क्वेश्चन था वो ये था कि प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करने के लिए और मशीन्स को अपग्रेड या टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करने के लिए गवर्नमेंट ने कुछ नए इनिशिएटिव्स MSMEs के लिए, बिकॉज़ जैसे आपने बोला कि मैन्युफैक्चरर्स हैं तो GDP एक बैकबोन बनते हैं, वो राइट बिल्कुल स्ट्रांग और GDP को बढ़ाने में हेल्प करते हैं। सिमिलरली तो मशीनरी के अंदर अपग्रेडेशन लाने के लिए, टेक्नोलॉजी में अपग्रेडेशन लाने के लिए या कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए कुछ ऐसा स्पेसिफिक पॉइंट? ठीक है, टेक्सटाइल के अंदर मॉडर्नाइजेशन स्कीम के उन्होंने लिखा है, बोला है। Okay. टेक्सटाइल के अंदर इफ यू मॉडर्नाइज फॉर द मशीनरीज एंड एवरीथिंग, या हैंडलूम के अंदर भी उस केस के अंदर दे विल फंडिंग जो आएगी उसके अंदर हो सकता है दे कैन बी सम सब्सिडी ऑफ द रेट इंटरेस्ट रेट। अब हमेशा क्या होता है कि कई कुछ क्लाइंट्स हमारे जो आते हैं, साहब हमने ये मशीन बना ली, ये इसके ऊपर प्रोडक्शन हो रहा है, 3 साल बाद टेक्नोलॉजी चेंज आती है, कस्टमर चाहता है हमको ये वाला प्रोडक्ट ही नया वाला ये ला रहा है, तो उसके लिए फिर मशीन लगाओ, 40-50 करोड़ का अपने से इन्वेस्टमेंट करो या जो भी अमाउंट का इन्वेस्टमेंट करो, मशीन लेके आओ। अब आदमी की पहले वाली मशीन का पैसे नहीं आया, बिल्कुल सही, और नई वाली मशीन का कैसे लगाएंगे? तो उसके इसके अंदर गवर्नमेंट की अगर इंटरेस्ट की सब्सिडीज आएंगी, सब्सिडीज देंगी या फंड आपको इजीली अवेलेबल होगा, जैसे PMEGP के अंदर अगर PMEGP जो स्कीम है जो स्पेसिफिकली फॉर मैन्युफैक्चरिंग सब्सिडी देती है, तो अगर उसके अंदर बेस्ट होगा, मतलब नई अपग्रेडेशंस आएंगी बढ़िया। और प्लस शायद से आपने सुना होगा या पढ़ा होगा भी रिसेंटली आया था कि बांग्लादेश और ये जो बाकी टेक्सटाइल करते हैं, तो इंडिया इज प्लानिंग टू कम्पीट विद देम इन टर्म्स ऑफ टेक्सटाइल एक्सपोर्ट, कि हमारा टेक्सटाइल भी, क्योंकि अल्टीमेटली हम भी एक टेक्सटाइल हब बन सकते हैं, तो हम वो चीज में बांग्लादेश को भी वो पीछे छोड़े। हाँ, इसमें previously we are the hub for the textile. Previously now Bangladesh has taken out this. Yes. और last 2 years जब हम लोग देख रहे हैं कि वो अनस्टेबल है, धीरे-धीरे ये हो रहा है, इंडिया ने प्लान करा उसको, और धीरे-धीरे वो जो काम है, जो शिफ्टिंग होनी थी, जो पहले हो सकती थी, अब वो ऑटोमेटिकली धीरे-धीरे इंडिया के पास में हो रही है। तो उसको मोटिवेट टेक्सटाइल वाले का इसी के लिए लाया गया, टेक्सटाइल वाले का लाया। दूसरा चीज, आप मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कमिंग की बात कर रहे थे, मैन्युफैक्चरिंग, तो अभी उन्होंने एक चीज पॉइंट करी थी कि वो 7 हाई स्पीड कॉरिडोर बनाएंगे रेल के। सबसे अच्छा हमारा ट्रांसपोर्टेशन का जो साधन है वो रेल है, और हाई स्पीड कॉरिडोर बनाएंगे तो हमारी कॉस्टिंग कहीं ना कहीं कम आएगी। क्योंकि जब ट्रांसपोर्टेशन आएगी, कॉस्टिंग आएगी तो कम होगी उसके अंदर। एक चीज 2-3 दिन पहले CNBC पे कॉल के जो थे उनका आया था, तो
उन्होंने ये बोला भैया पहले जो गवर्नमेंट अभी जो लॉजिस्टिक है जो Logistic. ट्रांसपोर्टेशन है Logistic काम ट्रांसपोर्टेशन करें। मैक्सिमम रोड के थ्रू होता है हाँ। नाउ वी विल शिफ्ट From प्लानिंग टू शिफ्ट दैट रोड रेल टू रेल, Okay. रोड टू रेल फास्ट ट्रैक पे आए और कॉस्ट इफेक्टिव कॉस्ट इफेक्टिव आई क्योंकि रेल की बिलीव कॉस्टिंग अभी जो EU के साथ डील हुई है उसका भी कहीं ना कहीं इसमें बहुत बहुत इम्पैक्ट इम्पोर्टेंट रोल है। रहेगा टेक्सटाइल इज अ मेजर बेनिफिशियरी बिकॉज अब हमारे उसमें भी राजस्थान में मेरे को जो जानकारी है जो ध्यान में एक्सपोर्ट टू अमेरिका इज कम है थोड़ा एंड एक्सपोर्ट टू यूएस EU यूरोपियन कंट्रीज साउथ अमेरिकन कंट्रीज की ज्यादा है तो उसका बेनिफिट अब EU का जैसे ये हुआ है डीलिंग इससे बेनिफिट डेफिनेटली आएगा राजस्थान की टेक्सटाइल कंपनीज को आने चाहिए डेफिनेटली तो हमारे यहाँ पे टेक्सटाइल भी और ज्यादा बूम पे आने का है बिल्कुल हमारे जो जियोपॉलिटिकल एजेंडा भी और प्लस हमारा बजट भी दोनों इंक्लाइन हो रहे हैं, दोनों मिल रहे हैं और वो चीज बढ़िया कर रहे हैं। ईयू से हमारे दो तरह के मेजर काम होते हैं, एक तो टेक्सटाइल का काम होता है, ठीक है, एक ऑटोमोबाइल का काम होता है। एग्जैक्टली अब इन दोनों के लिए हमारे को ट्रांसपोर्टेशन चाहिए। परफेक्ट। एक के लिए हमने वाटरवेज बना दी एक के लिए waterways और बना दी। डोमेस्टिक के लिए हमने देख लिया। Domestic बना दी। अच्छा, दूसरी चीज जैसे हम लोग आज इन्होंने डिक्लेरेशन कराया तो इसको बनने में आगे बढ़ने में थोड़ा टाइम लगेगा। सेम ईयू वाला मामला भी है, उनको भी अभी इम्प्लीमेंट होने में 4 साल। तो ये देख रहे हैं कि जैसे ही ईयू की डील हुई है तो कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंटेशन का पार्ट है, 4-6 महीने के अंदर आगे जैसे बढ़ेंगे ये लोग। और प्लस ये वाला पॉइंट को अगर समूह करते हैं, जैसे आपने बोला, मुझे जो 2-3 चीज सुनने में मिली है, जहाँ पे अनाउंसमेंट चाहिए उनके साथ डेडलाइन भी साथ साथ मैंने सुनी है, मेजरली दी है, तो वो इम्प्लीमेंटेशन की तो आई गेस दैट्स वेरी पॉजिटिव है कि वो चाह रही गवर्नमेंट की ये इम्प्लीमेंट हो। अभी तक क्या होता था, हमने बात कर ली, ठीक है, बात चल रही है, आज करेंगे कल करेंगे, और अब डेडलाइन के साथ में काम करना चाहती है गवर्नमेंट। आप देखोगे ना सबकी जगह जो दीदी है, डेडलाइन देते फिर काम करते हैं ये लोग, फिर डेडलाइन दी काम करो, डेडलाइन दी काम करो, Exactly. साइन करना है आपको, टाइम बाउंड काम करो आप। तो ये वाला जो हमारा मशीनरी और प्रोडक्शन कॉस्ट वाला काम है, ये मुझे लगता है कि जो हमने मशीनरी सब्सिडीज बात करी जो टेक्सटाइल्स के लिए, सेकंड हमने रेलवे की बात करी फॉर द लॉजिस्टिक्स, ये दोनों चीज़ों को अगर हम देखते हैं प्लस ईयू की जो हमारा डील हुआ है, उन तीनों चीज़ों को और चारों चीज़ों को अगर मिलाते हैं तो दैट सीम्स कि मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट और मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट देने का अच्छा प्लान है, बिकॉज वो दैट इज कमिंग अंडर सेल्फ रिलायंट इंडिया एज वेल। गवर्नमेंट इज टेकिंग अ रोड मैप। ग्रेट, परफेक्ट। अगली जो चीज है वो ये है कि बहुत सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी पे ही आए हैं कि मेक इन इंडिया के लिए, वो शायद से ये क्वेश्चन कवर अप कर रहा है कि मेक इन इंडिया के लिए और कुछ ज्यादा सब्सिडीज आई हैं, कोई ऐसा स्पेसिफिक सब्सिडी मेरे ख्याल से हमने स्पेसिफिक नहीं सुनी है, बट ऑल ओवर में नहीं है। इसके अंदर इन्होंने 2-3 चीजों को जो देखा है ना, जो हमारा ट्रेडिशन है, जैसे एक तो योगा और एक आयुर्वेद, बिल्कुल इन्होंने इतना प्रमोट कर लिया। जैसे पहले इस मोदी जी इसको प्रमोट आ रहे थे, अब फर्स्ट और सेकंड टाइम उन्होंने बजट में शामिल कर लिया। भाई इसके लिए हम लोग स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज बनाएंगे, स्पेसिफिक पर्सन को तैयार करेंगे और उनको टीचर बनाएंगे। तो मतलब योगा can we say that कि बायोफार्मा क्या है? हाँ absolutely मेक इन इंडिया so it will be in the mainstream Mainstream, अब like उनको- allopathy या जो medical colleges की बात कर रहे हैं बेसिकली बायोफार्मा it will be in the mainstream जैसे उन्होंने क्या करा, एक बार नया वर्ड यूज करा उन्होंने, ठीक है, जो हम लोग आजकल कंटेंट क्रिएट करते हैं जिसको, अब उनके लिए वो यूज कर रहे हैं, ऑरेंज इकोनॉमी तैयार करेंगे हम लोग, कंटेंट क्रिएटर्स को तैयार करेंगे और उसके लिए मुंबई को बेस बनाएगा और वहाँ पे तैयार करेंगे, हम लोग सिखाएंगे और यूनिवर्सिटीज तैयार करेंगे कि कैसे हम लोग मेजर काम कर सकें और उसको तैयार कर सके टीम को। अभी तो एक तरीके से कोर्स देने वाले हैं ये लोग। So they are actually acknowledging the content creation content industry creation as है, well. बिल्कुल। Content creation as an industry altogether. Industry, they accepted right? it. Absolutely, they have accepted Accepted it कि to आप that इसको- level. हाँ, कि इसका बिजनेस हो गया प्योर एक तरीके से। हाँ। डिजाइन इंस्टीट्यूट Design institute. Absolutely. डिफरेंट पार्ट, टोटली डिफरेंट हाँ, है ना। इसके अलावा क्या जो आपने देखा ना मेक इन इंडिया में आपने 2-3 चीजें सुनी, बिल्डिंग इक्विपमेंट कंस्ट्रक्शन, 3 केमिकल पार्क्स, container manufacturing, textile modernization, expenditure, all these, all national handloom, mega textile parks, all these are what? All these are Mahatma Gandhi Yes, Swan Yojana for weavers and small manufacturers. Yes. And what all these? Make in India को support करने का काम है। Make in India के अंदर अगर modernization होगा, और आपने आप जो चीज कर ली है, अचीव कर लिया, अब आप उसके आगे बारे में नहीं सोचोगे। जो गवर्नमेंट बोल रही है कि आप सोचो आगे के बारे में, आगे के बारे में सोचने के लिए गवर्नमेंट ने आपको सपोर्ट देने का पूरा प्लेटफॉर्म लेकिन इंडिया के अंदर अभी देखो, फर्स्ट टाइम शायद अपने बजट में ये बात कही है हाई वैल्यू क्रॉप की। पहले इन्होंने लगभग बात नहीं करते थे, आज ये काजू है,
कोको हाँ। है, चंदन है, इसको कह रहे हैं कि हम लोग इसको प्रमोट करेंगे अब। पहले अभी हमारे यहाँ पे करते और उन्होंने सैंडलवुड को भी हमारे हिस्ट्री के साथ कनेक्ट करके ही बोला कि हम लोग उसको एक्सपोर्ट करेंगे Exactly. जितना ज्यादा हो सकता है, और उसके लिए फार्मर्स को हेल्प करेंगे हम लास्ट लोग। टाइम तो मखाने के ऊपर हाँ। हाँ मखाना अब नए नए वर्ड्स को ये यूज करेंगे भाई ठीक है, इसको प्रोडक्शन करना है, इसकी प्लानिंग करनी है, एक्सपोर्ट्स करना है, मेजर इंसेंटिव दो इसको आप। Exactly. फार्मर्स को दो, चाहे एक्सपोर्टर्स हो या मैन्युफैक्चरर हो, जो भी हो उसको दो आप बोलिए। तो मेक इन इंडिया में मुझे जो अभी पूरे डिस्कशन से समझ आ रहा है, अगर कंक्लूड करते हैं तो जितनी भी हमारे देश की आज तक हिस्ट्री से भी अगर चीज़ें निकालते हैं, जो फेमस चीज़ें थी जो कि सिर्फ इंडिया में ही हो सकती हैं, मान लेते हैं कि चाहे वो हम बायो फार्मा को एक वेरी लार्ज प्रोड्यूसर समझे, चाहे हम ये समझे कि जो पॉलिसीज आ रही हैं टेक्सटाइल हो गई, चाहे हम अभी जो हाई क्रॉप फूड्स बात कर रहे हैं, हाई वैल्यू क्रॉप्स की बात कर रहे हैं वो हो गए, तो ये सब चीज़ें ये दिखा रही योगा आयुर्वेदा हेवी मशीनरीज जो Heavy machineries, capital goods के लिए। कैपिटल गुड्स। हाँ, तो इसका मतलब जो हमारे इंडिया के ऑलरेडी पिलर्स थे उनको स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है टू बिल्ड दिस मेक इन इंडिया। जो हमारे ऑलरेडी बैकबोन थी उसको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा रहा है। उससे इम्पोर्टेंट और ये है कि पहले अपन लोग जो मशीनरीज थी वो इम्पोर्टेड मशीनरीज, अब वो मशीनरीज को भी इंडिया में बनाने के लिए सपोर्ट कर रहे हैं। क्या आप जैसे वो डिफेंस की मशीनरीज थी, अभी उन्होंने एरोप्लेन्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए, मेंटेनेंस के लिए जो मशीनरीज होती है वो इंपोर्ट करनी पड़ती है। अब उसके मेंटेनेंस की मशीनरी बनाने के लिए इंडिया में सपोर्ट करेंगे। इसमें एक मेरा क्वेश्चन था, सेमीकंडक्टर्स अभी काफी लोगों की जुबान पे आया जा रहा है, एक सेमीकंडक्टर्स, एक ग्रीन हाइड्रोजन। आई नीड टू अंडरस्टैंड कि इंडिया में और अभी जो हमारा बजट है इसके कंटेक्स्ट में what is the scope? Are we going to like India will be able to manufacture the semiconductors as well, और भी हमारे यहाँ पे सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में साउथ के अंदर स्टेट्स के अंदर they have created some rare earth material, वो मेंशन किया अभी। yes स्पेशल कॉरिडोर्स बनाए गए हैं, स्पेशल कॉरिडोर्स बनाए गए हैं, उसकी मैन्युफैक्चरिंग उसको निकालना एक्सपेक्ट करने के लिए जो 4-5 स्टेट का नाम लिया था ओडिशा, so that will support the Indian government want to explore India कि whether can we be on the self standing basis कि हम सेमीकंडक्टर खुद ही बना लें, खुद ही क्यों डिपेंड करें किसी because in that case we'll be able to break the monopoly of certain nations altogether. the negotiable table then yes absolutely. बेसिकली क्या है कि अभी हम लोग बात कर रहे हैं कि गवर्नमेंट एआई का प्लान कर रही है, सेमीकंडक्टर के बारे में बात कर रही है, रेयर अर्थ के बारे में बात कर रही है। आज हम लोग देख रहे हैं टेक्नोलॉजी का जो लेवल है उसके लिए कंप्यूटिंग चाहिए। कंप्यूटिंग का बेस लेवल क्या है? दो चीजें हैं, एक तो सेमीकंडक्टर है, एक एनर्जी है। एनर्जी, ठीक है, एनर्जी के लिए हमारे पास यहाँ पे उन्होंने बोला कि हम लोग न्यूक्लियर जो प्रोग्राम्स हैं, वेयर हाउस है, उसके लिए जो भी इंपोर्ट होगा उसको हम लोग ड्यूटी फ्री करेंगे। पहले भी था, अब मेजर चीज़ों को उन्होंने कर दिया। दूसरा, सेमीकंडक्टर के लिए हमारे जो बेसिक चीज़ें चाहिए होती है वो रेयर अर्थ मेटल चाहिए होती है। उनको मालूम है कि अगर हमारे को भविष्य के लिए कंप्यूटिंग पावर बनना है तो कहीं ना कहीं हमारे को रेयर अर्थ चाहिए। रेयर अर्थ का बेस यूज कहाँ पे होगा? सेमीकंडक्टर। तो जब हमारे पास 20 लाइन सेमीकंडक्टर और रेयर अर्थ होगी तो ही हम लोग आगे प्रोडक्शन की बात करें, मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, ट्रांसपोर्टेशन की बात करें। आज बिना कंप्यूटिंग के हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। सब चीजों का बेस आज एआई है, एआई के अंदर आप देखोगे तो इतने हैवी इलेक्ट्रिसिटी यूज हो रही है, हैवी पावर यूज हो रहा है। वो किस लिए हो रहा है? वो कंप्यूटिंग के लिए यूज हो रहा है। एग्जैक्टली। तो बिना कंप्यूटर के वो सब मुश्किल है, और कंप्यूटर तभी चले पाएगा जब भी सेमीकंडक्टर होगा और रेयर अर्थ होगा। एक चीज और है, पहले के जमाने में लोग बाग पढ़े लिखे नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं समझते, जमाने पिताजी और कंप्यूटर चलाना उनको हार्ड लगता है। बिल्कुल। बट आज की जनरेशन है, दे आर फास्ट। मतलब आई वुड से इवन मैं भी आउटडेटेड हो गया, मेरे भी अगर 15 साल नीचे, 20 साल नीचे कोई लड़का आगे काम कर रहा है, सही में तो मैं भी आउटडेटेड हो गया। आज तो 2 साल पुराने वाले भी आउटडेटेड हो जा रहे हैं, 2 साल में आउटडेट हो जा रहे हैं। या वेरी फास्ट टेक्नोलॉजी। एग्जैक्टली। और उसके हिसाब से बजट सोच के बनाया जाए। हाँ, तो कहीं आपको तो इन्होंने अब देखोगे ना, यूज को देखा, 4-5 बार वर्ड यूज करा इन्होंने, यूज का टारगेट है इनका। अगर नंबर्स भी देखा जाए तो सेमीकंडक्टर मिशन 2.0 के लिए 40,000 करोड़ का आउटले भी रखा है। हाँ, स्पेसिफिकली सेमीकंडक्टर के लिए, और रेयर अर्थ के लिए ओडिशा, केरला, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। बस इसके बाद से जो कनेक्ट करते हैं ना, जो मुझे लगता है कि वो शायद बजट में भी इम्प्लाई नहीं हो, बट मुझे लगता है पॉलिसी में कहीं ना कहीं होगा। जो इंडियन अगर कोई बिजनेस ओनर है या इंडियन कोई टेक्नोलॉजी इनोवेटर है, वो खुद
खुद के भी सर्वर यहाँ पे स्टैब्लिश करता है, डेटा सेंटर्स करता है, तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है प्रोविजन होगा, अभी नहीं किया होगा बट अभी डेटा सेंटर्स के लिए अलग से पॉलिसी है। टैक्स भी करा है डेटा सेंटर्स को 47 वो तक। ओके 47 वो फॉरेनर्स वालों के लिए Foreigners अब को इंडिया domestic के लिए भी नॉन रेजिडेंट इंडियंस जो हाँ, बाहर NRI रहते हैं वो आके लगाएंगे, वो लगाएंगे तो उनके लिए फ्री कर दिया वो इन्होंने। लगाएंगे बहुत विद अच्छी बात है। कोलैबोरेशन विद द इंडियन कंपनी, कहीं ना दैट कहीं वुड बी अ बेनिफिशियल। परफेक्ट। तो वो दैट्स अ वेरी गुड पॉइंट, क्योंकि हमें बहुत ज्यादा क्वेरीज उसकी डेटा साइंस पे डीप टेक के अंदर जितने स्टार्टअप्स थे, एवरी इंडियन स्टार्टअप और बिजनेस ओनर वाज क्वाइट इंटरेस्टेड कि मुझे खुद का डेटा सेंटर एस्टैब्लिश करना, बिकॉज आज के समय पे अगर कोई भी टेक्नोलॉजी पर उनको वर्क करना है तो दे नीड या तो हमें अर्थ मटेरियल्स चाहिए, रेयर अर्थ मटेरियल्स, या फिर साथ साथ हमें पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। वो इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सब चीजें गवर्नमेंट कॉरिडोर्स बना के कर रही है। सेकंड थिंग इज वो डेटा सेंटर्स लोग एस्टैब्लिश करते हैं तो वी विल बी एबल टू सर्व आवर नेशन वेरी वेल। और जो फिर वो डिजिटल इकोनॉमी, ऑरेंज इकोनॉमी की बात हो रही है, वो तभी और ज्यादा स्ट्रांग हो पाएगी जब हमारे पास बैक एंड भी स्ट्रांग होगा उसके लिए। एब्सोल्युटली, मतलब भाई ये की पूरी सप्लाई चेन की अगर हम बात करते हैं तो फ्रॉम बेस टू द टॉप एवरीथिंग इज नेशनलाइज्ड नाउ। अच्छा, डेटा सेंटर के अंदर बेस वही है दो जो हमने स्टार्टिंग करा था, कि सेमीकंडक्टर और रेयर। वो करना चाहिए, दोनों चीजें है ना, खास की इकोनॉमिक पावर बनने वाली है। वो ठीक है, जो इन दोनों टेक्नोलॉजी पे काम करेगा उसमें अच्छी चीज है इसमें। एंड अभी एक और अपडेट किसी न्यूज़ ने दिया है, जो हम बात कर रहे थे उसको थोड़ा क्लियर वर्ड दिया उन्होंने, जो कॉर्पोरेट मित्रास को, ट्रेड्स को और जीएसटी इनवॉइस को, तीनों को जोड़ के उन्होंने बोला डिजिटल क्रेडिट असेसमेंट। तो ये तीनों को जोड़ के डिजिटल क्रेडिट असेसमेंट बना करेगी, उसके थ्रू फाइनेंसिंग होगी। तो इसका मतलब जो पीएसयूज को आप बोल रहे थे टेक्नोलॉजी अपग्रेड करना पड़ेगा, तो वो इस तरीके से अपग्रेड करेंगे। और इसका मतलब ये हुआ कि आपको तीनों चारों चीजों को कंबाइन करके जो असेसमेंट करना होता है बैंकिंग फाइनेंस को, जिस तरह से सिविल वो फास्ट हो जाएगा। वो एक पोर्टल पे लेके आएंगे। ये डिजिटलाइजेशन होती ताकि उसकी रिक्वायरमेंट जो है ना, एक्चुअली रिक्वायरमेंट पता चल जाए उसकी तो कितने मुझे लगता है जो ऑडियंस सवाल पूछती है ना, उनका एग्जैक्ट जवाब ये है अभी कि अभी तक हम पिछले बजट में सोचते थे कि इतना अमाउंट दे दिया, अब उस अमाउंट को हमें समझ आया कि ये अमाउंट नीचे तक पहुंच नहीं पा रहा है, उसके अंदर ये प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का सोल्यूशन आया। नहीं साहब, ये भी नहीं बोलूंगा, मैं ये बोलूंगा कि इन्होंने अलोकेशन किया है फॉर द फ्यूचर ग्रोथ। हाँ, ये एक तरह से नींव के अंदर पैसा लगा है, बिल्कुल नींव खड़ा करने के लिए पैसा लगा है। कैपिटल एक्सपेंड, ये कैपिटल ओरिएंटेड बजट है एक तरीके से। कैपिटल में है एक तरह का कैपिटल ही कहूंगा, हाँ। बट टेक्नोलॉजी ड्रिवन एक छोटी छोटी चीजों को सोचा गया है कि क्या आगे फ्यूचर, मतलब फाउंडेशन को हम और Foundation स्ट्रॉन्ग को करने और के strong लिए करते जो हैं। करना हमें चाहिए, वो कंसिडरिंग द ग्लोबल मेकशिफ्ट, जो अगर हम बोलें उसको ध्यान में रखते हुए ग्लोबल मेकशिफ्ट एंड रिक्वायरमेंट ऑफ द इंडियन पीपल आल्सो। इंडियन पीपल आल्सो इंडियन पीपल, मैं बोल रहा हूं टेक्नोलॉजी ड्रिवन हो गए बच्चे, हाँ बहुत फास्ट है, वो समझते हैं कहाँ पे फंसते हैं। तो वो जैसे अपन ने डिस्कशन किया, अपन ने छोटी सी बात डिस्कशन बोला, ये पेन है और वो पेन रिजॉल्व हो गया। पेन का सॉल्यूशन निकलेगा। हम इससे पहले यहाँ से मतलब ये सेशन शुरू होने से पहले हम ये डिस्कस करते कि ये पेन अगर इसका सॉल्यूशन है, तो लास्ट एक क्वेश्चन है, वो मेरे ख्याल से सब कुछ कवर हो गया है, और मैंने ये पढ़ा था अभी जब बजट आ रहा था तो वो बोल रहे थे, और जो हम भी बात करते हैं कि जो एमएसएमईज हैं, अगर हम उनको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके देते हैं, उन्हें ट्रेनिंग्स देते हैं, तो कुछ टूल रूम्स भी स्टैब्लिश किए हैं, नए टेक्नोलॉजी टूल रूम्स, 200 से ज्यादा टूल रूम्स, हाईटेक टूल रूम्स किए हैं। तो दैट्स आल्सो अ वेरी गुड पॉइंट फॉर ऑल द एमएसएमईज कि अब उनके पास जो हम डीएफओस की बात करते हैं, डेवलपमेंट एंड फैसिलिटेशन ऑफिसेज, शायद से उनके अंदर और ज्यादा टेक्नोलॉजी इंक्लूड करेंगे ताकि उनकी मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्शन को उसमें भी कवर आ पाए, और साथ साथ उनको भी डिजिटली कर पाए, डिजिटलाइज कर पाए एमएसएमईज को। सो इसके साथ एंड करते हैं। मेरा एंड करने से पहले मेरा एक क्वेश्चन है, आप लोगों के हिसाब से वुमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए क्या स्पेशल है जो यहाँ से वो ले सकते हैं? बिकॉज अभी तक हमने जितना भी डिस्कस किया दैट इज वेरी जनरलाइज्ड, दैट इज फॉर एवरीबॉडी, बट इफ यू आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट वुमेन एंटरप्रेन्योर्स वेदर इन एग्रीटेक or any other I would say technology advanced industries, manufacturing, तो क्या ऐसा है जो वो यहाँ से लेके जा सकती है? चीजें देखिए, मेरे को भी तब टाइम पर 2-3 चीजें उन्होंने वुमेन पर्टिकुलरली को हाँ और स्पेसिफिकली दिव्यांगों के लिए भी बोला गया, Okay. दोनों को सपोर्ट करना चाहिए। 3-4 अनाउंसमेंट हुए। एक तो जो हम बात कर रहे थे शी मार्ट अपडेट, पहले लक्ष्मी Mart, दीदी yeah. अपग्रेड, लक्ष्मी दीदी था स्कीम, अब उन्होंने शी मार्ट भी एक साथ साथ किया, सेल्फ हेल्प एंटरप्रेन्योर्स The को। capacity has been increased. Yes. Upgraded to CMART. Okay, okay, तो हम ये कह सकते हैं कि whether in terms of grants or whether in Oh, terms yes, of in all other yes, support, yes. there is a They- lot they- that they can take from here, right?
एंड साथ साथ एक स्कीम और है मुझे ढूंढनी पड़ेगी जो उन्होंने अमाउंट भी थोड़ा इंक्रीज किया है फॉर वुमेन SC ST एंड OBC। तो वो स्पेसिफिक सेगमेंट के लिए भी कुछ अमाउंट जो पहले फंड हुआ करता था उसमें भी टॉप अप दिया है, तो वो भी बजट इंक्रीज किया है। That's amazing. तो ओवरऑल अगर हम पूरे बजट को 2 लाइन में समराइज करना चाहेंगे तो सब पहले आप बताइए कि आपके हिसाब से It is future oriented बस। Okay. I understand the foundation has been created. Even डायरेक्ट टैक्स के अंदर लिटिगेशंस को कम करने की कोशिश करी गई। डायरेक्ट टैक्स के अंदर कस्टम्स को बहुत इम्प्रोवाइज किया, कस्टम को ठीक करने की कोशिश करी गई, उसके सिस्टम को फास्ट ट्रैक करने के लिए ताकि फास्ट ट्रैक मूवमेंट हो गुड्स का। Okay. It is business oriented, not a tax oriented, it is a business oriented budget. Yes. Amazing. जी मतलब आप इसको एग्रीकल्चर के कंटेक्स्ट में किस तरीके से देखते हैं? Agriculture is basically a employment or generating area in which so they have given preferences to the animal production and the dairy and the this coconut production, then cashew production, then sandalwood. So lot of is the employment oriented. And will be मतलब इसमें research and development का काफी input रखा गया है। As far as overall budget is concerned, is the technology guided, Yes. growth oriented, and like we say, ease of the business. So Okay. that is the overall concept. Okay. सर आपके क्या इस बजट के लिए? मेरे को लग रहा है कि जो बजट है ना कहीं GDP को हर जगह से लिंक करने वाला है। वैसे तो बजट होता है लिंक GDP के लिए होता है, मगर जैसे हम लोग बात करें बेसिकली GDP का जो बेस होता है वो मैन्युफैक्चरिंग होता है। अब बेस जो मैन्युफैक्चरिंग हमारे पास एग्रीकल्चर को सपोर्ट करा, टूरिज्म को सपोर्ट करा इन द सेंस ऑफ IT सेक्टर, ठीक है। तीसरा इन्होंने जो बात करी, जो ट्रांसपोर्ट की हर जगह की बात करी है, वो रेल की तरफ हो, एयर की तरफ हो या रोड की तरफ हो, तो तीनों की जगह का बात करी है। तो इन्होंने कहीं की कॉस्ट कम करी और उसका बेनिफिट हमारे को एक्सपोर्ट जो हम लोग सीएच के बाया कर रहे थे आउट ऑफ इंडिया, उसको इन्होंने DTA डोमेस्टिक के अंदर भी अलाउ करा, तो कहीं ना कहीं मैन्युफैक्चरिंग को लिंक करवा, बेहतर तरीके से कॉस्ट कम करी और GDP को प्लस करने का काम करा। ओके हेमंत जी आपका क्या इस पे टेक रहेगा? बजट मुझे पे लगता भी है कि ये जो हम काफी समय से बात कर रहे हैं, काफी सालों से बात कर रहे हैं, एजेंडा भी वही है, इट इज टू बिल्ड द आत्मनिर्भर भारत। वी आर इन द सेम। ये आत्मनिर्भर भारत का सबसे बेस्ट एग्जांपल है, बिकॉज लॉजिस्टिक्स हमारे सॉर्ट हो रहे हैं, एक्सपोर्ट हमारा अच्छा हो रहा है, आयुर्वेदा जैसे जो हमारी होम ग्रोन चीज है, जो हमारी ट्रेडिशन है, जो हमारी हिस्ट्री है, हम उनको उठा रहे हैं, टेक्सटाइल हम वापस से ले रहे हैं वो क्राउन। तो ये सब चीजें एक आत्मनिर्भर भारत की क्लियर एक इंडिकेटर्स हैं कि हम अब आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत के बिल्कुल सही रास्ते पे, एंड इट्स वेरी नियर। अब बिल्कुल कह सकते हैं, बिकॉज अभी तक ये बातें सिर्फ हमारी एजेंडाज में होती थी, स्पीचेस में होती थी कि ऐसा करेंगे, अब हम ये पेपर पे तक आ गए हैं। अब अगला साल मुझे लगता है कि 2026 हम इसकी इम्प्लीमेंटेशन में लगा देंगे। 2030 तक फुल ग्रोन हम आत्मनिर्भर भारत 100% कह सकते हैं, और 2030 तक का बिल्कुल अच्छा समय है हमारे पास, ये 4-5 साल, जहाँ पे सेमीकंडक्टर और रेयर अर्थ मटेरियल जो हम ढूंढ रहे हैं, वो हमारे जो कॉरिडोर्स बनाए गए वहाँ से फॉर श्योर मिले, और वो हमारा फाउंडेशन बेस स्ट्रॉन्ग हो और हम आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत की तरफ बढ़े। क्लोज इट कि मैडम ने बहुत हार्ड वर्क करा। एंड इट्स बीन सबसे मेजर वर्क करके एक फाइनल पॉइंट्स के ऊपर देखा गया एंड हाउ इट हैज टू बी, हाउ ग्रोथ को कैसे इंजन को बढ़ाया जाए, चाहे वो लिटिगेशन रिड्यूस करना, कस्टम बिजनेस फास्ट करना, गवर्नमेंट लोगों को नीचे तक ऊपर। आई अंडरस्टैंड बजट इज एंड सब लोग मेरे ख्याल से हम बहुत सालों से भूल जाते हैं, मैं वेट कर रहा था इस चीज का, फिस्कल डेफिसिट कम हुआ है हमारे देश का, बहुत अच्छी बात है, वो दैट्स अ प्राउड मोमेंट फॉर द फाइनेंस मिनिस्ट्री। को खुद ने भी एक्सेप्ट करा है हाँ, कि 2021 में वादा किया था और 2026 में पूरा हो रहा है। गवर्नमेंट दिमाग लगा रही है। चलिए, they are focused. थैंक्स अ लॉट, Thank you so much. Working like a corporate. बिल्कुल।